रेशो एनालिसिस, यह इस चैप्टर का नाम है। और रेशो एनालिसिस इज़ यूजफुल एकेडमिकली फॉर ईच एंड एवरी कॉमर्स स्टूडेंट. नो वन कैन ignore the importance of ratio analysis. Means I want to say ratio, it is a vein of each and every business. ठीक है. अब means on what basis I am saying ratio is a vein? Because each and every businessman or manufacturing company or suppose corporate sector or any, they are interested to maximize the profit. This is the basic object of each and every businessman, business concern, etc. For that, each and every manufacturer is interested how I can minimize the cost of production. Means each and every saving of a coin, I say each and every saving of a coin in relation to expenses, it is a profit. It is a profit. Means someone say it is very easy task by adding the expected profit. So this is very easy, yes, but in a market there are number of players, means they all are the competitor for your product. That's why on that ground you can't say just like this is a easy task. So I want to put some pressure, more pressure, how you can minimize the cost of production, how you can means how you can save the expenses. That's why 1 rupee coin if I saved, or suppose 1 paisa I saved, that is the profit of your business. So question raised in your mind, how we can maximize the profit or how we can minimize the cost of production with the help of ratio. Before this, there is a need to understand what is the meaning of ratio. As per my knowledge, the related person have the knowledge because it is already defined means in 7th class or 8th, 9th, 10th, etc. On that ground I can say each and every person is known about the ratio. Ratio, it is a relationship between numerator and denominator. ठीक है, इसका कोई ज़्यादा डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं. इट इज़ अ रिलेशनशिप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं अपने को. ठीक है, बट आई वॉन्ट टू रिपीट माई सेंटेंस. रेशियो इज अ वेन. जैसे अपने बॉडी में जो वेन का इम्पोर्टेंस है उतना महत्व मैं रेशियो को दूंगा. ठीक है, रेशियो इज हेल्पफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, सम स्टैंडर्ड आर सेटअप, but when I say each and every businessman wants to maximize the profit, from what bottom line businessman wants to increase the profit, it is not defined. That is very important. यह डिफाइन नहीं किया है, but compare with the help of comparison you can think, is it means in a position your business wants to increase the profit or not. यह लेकिन आप इस रेशियो एनालिसिस से सर्च कर सकते हो. ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि जैसे इसके पहले मैंने एक ब्रेक इवन एनालिसिस बोला था, यानी उसके बारे एक्सप्लेनेशन. तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो मैं मीनिंग बोला था, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो वो पॉइंट ऐसा था कि फ्रॉम दैट पॉइंट प्रॉफिट बिगिंस. ठीक है ना, मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा था, बट फ्रॉम रेशियो एनालिसिस you will not get a such a type of
point we have to make comparison between two means manufacturing company और businessman etc. ठीक है, इससे अपने को मदद मिल जाएगा। जैसे कि for better understanding I want to take a little one example. Suppose number one is suppose gross profit, gross profit रेशियो, ठीक है, रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स, ठीक है, इनटू 100। आई बात समझे? मतलब ऐसा हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन सेल, ठीक है ना, सेल नॉट डिपेंड अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट बट ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन सेल, ठीक है। बोलने का तात्पर्य ऐसा हुआ कि सेल इंक्रीजेस मीन्स जीपी आल्सो इंक्रीजेस, बट बाय व्हाट परसेंटेज जीपी इंक्रीजेस that is important. Means suppose this is my current year and this is my previous year, ठीक है ना, this is suppose 2019 and this is suppose 2020, ठीक है। राम एंड कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया। Ram and company's gross profit ratio in 2019 suppose 20%, ठीक है। Now in this 2020 that is suppose 30%, ये सिर्फ नोशनल है, ठीक है। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर मीन्स गुड फॉर राम एंड कंपनी, यह अच्छा है क्योंकि the gross profit increases. Actually, percentage of gross profit increases that is depend upon sale. Sale बढ़ गया तो GP बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आई बात समझे? Because GP it is a difference. यह एक डिफरेंस है। डिफरेंस इन द बोलने का मतलब ऐसा हुआ सेल्स, ठीक है ना, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज योर जीपी। आई बात समझे? ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला कि जैसे इन 2019 सपोज 2 लाख सेल्स है, ठीक है, 2 लाख है, और 2020 में 5 लाख है, 5 लाख, ठीक है। इन द सेम प्रोपोर्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेस, ये भी एग्री होना ही आपको, ठीक है। व्हेन आई थिंक अबाउट द 2 लाख सेल एट दैट टाइम व्हाट एवर मीन्स रॉ मटेरियल परचेज बाय मी मीन्स माई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेस टू परचेज द रॉ मटेरियल आल्सो, ठीक है। तो नेचुरल बात है, यहाँ पे जो समझो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस का मैंने सम लिया तो 1,70,000 है टोटल। सो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट हियर। आई बात समझे? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं सेल बोल रहा हूँ कि माई सेल मीन्स राम एंड कंपनी का सेल है 5 लाख, तो प्रोपोर्शनेटली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेस। आई बात समझे? उतना ही एक्सपेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ेगा मतलब कैसे हुआ कि नियर अबाउट यहाँ भी आपका एक्सपेंस 70% ही रहेगा। आई ना बात समझे? 70% ही रहेगा। ऐसा प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता है 20% और 30%, यह नहीं हो सकता है। आई बात समझे? जानबूझकर मैं यहाँ पे लिखा आपको समझाने के लिए। कभी भी एक ध्यान में रखना, क्योंकि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, थिंक अबाउट पर यूनिट, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक अ प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट, ठीक है। एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम ही आएंगे, ठीक है। अब मैंने ऐसा मतलब थिंक किया अभी कि एक यूनिट है, उसमें रॉ मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका टोटल लगाया मैंने तो आया सपोज 70 रुपीज़,
आई बात समझे, मतलब ऐसा हुआ कि पर यूनिट माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 70 रुपीज, ठीक है। इफ आई वांट टू टेक मोर देन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, आई बात समझे, ज़्यादा यूनिट का मुझे प्रोडक्शन लेना है, तो नेचुरल बात है, मैंने समझो यहाँ पे 100 यूनिट बनाए, आई हैव टेकन अ प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाय 70 मीन्स 7000, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आयो बात समझे, यह बढ़ेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि दैट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस per unit remain constant, it can't be increase or decrease। अब क्यों डिक्रीज होगा तो मैं बाद में बताऊंगा, बट इट कैन बी इंक्रीज, ठीक है। दैट्स व्हाई थिंक अबाउट दैट, कैन इट बी पॉसिबल इफ द सेल इंक्रीजेस मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीजेस, इट इज नॉट पॉसिबल। आई क्या बात समझे, यहाँ भी यह जैसे मैंने अभी उदाहरण के तौर पे 30% लिया, तो निश्चित वो 2030 में भी 30% ही रहेगा। आई बात समझे, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू कीप दैट 30% अलाइव। आई बात समझे, वो रखना ही है, उसको जिंदा रखना है 30% कोई भी हालत में। हाँ, जैसे मैंने बोला ईच एंड एवरी सेविंग ऑफ पैसा, आई क्या बात है, सेविंग ऑफ पैसा इट कैन बी टर्न इनटू प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं बढ़ सकता है। मतलब ऐसा यू कैन एंजॉय द क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब ऐसा हुआ कि यू परचेस अ रॉ मटेरियल, सपोज हियर 20,000 किलोग्राम, हियर यू वांट सपोज 50,000 किलोग्राम, ठीक है। यू कैन एंजॉय सम डिस्काउंट इफ अ सप्लायर गिवन टू यू, ऑन दैट ग्राउंड इट मे बी इंक्रीज, ठीक है ना। ये थोड़ा सा 0.05% बढ़ सकता है, लेकिन 2%, 5%, 10% ऐसा नहीं बढ़ सकता है। आई बात समझिए, एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब दूसरा बात ऐसा है यहाँ पे कि अब कंपैरिजन कैसे करना है। यह आपका राम एंड कंपनी है, इन द सेम ईयर मीन्स इन 2020, ठीक है। यहाँ पे श्याम एंड कंपनी है। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है सपोज 25%। आई बात समझे, मतलब साफ हो गया है यहाँ पे क्या हुआ कि श्याम एंड कंपनी थिंक बिकॉज बोथ द कंपनी मीन्स प्रोड्यूसिंग और सपोज टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेम आर्टिकल, and the Shyam and company think when you compare the gross profit with Ram and company, why the Ram and company's profit is means gross profit is more, ठीक है ना। He think how I can increase my gross profit. If suppose such a type of ratio is not calculated by means Shyam company, so think by your mind, is it possible to think about his own business is in a good position or not? The question raised by me in your mind and you get an answer with the help of gross profit ratio. That's why this ratio analysis play a vital role for comparative स्टडी। और इसके आगे भी मैंने तो एक सैंपल करके आपके सामने ये मतलब एक्सप्लेन किया, इसके बाद में बहुत रेशियोज है, मैं हर एक लेक्चर में एक एक रेशियो लेके वो एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में अपन यानी थिंक करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल डेरिवेटिव्स, economics and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.